Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This is the lecture for grade 4 for the subject of English, and we are going to start unit number 3 from our students book, which is a traditional tale. And the name of this traditional tale is Why the World is Good or Bad, and this is the lecture number 1 for this unit. So in this unit we are going to cover the reading of the lesson. I will read the whole lesson with you और आप मेरे साथ साथ ये lesson read करेंगे. Then I will give you the meanings of difficult words and you have to write those words and meanings in your English classwork notebook. So then we will move towards the exercise, and the first section of exercise is questions answers. You can find these questions on page number 17 of your book. You will write down the question and understand that what is asked. Then I will give you the answers of these questions, and some of the questions are given to you as your homework. So let's begin. As you have to write down the meanings of difficult words and the question answers in your English classwork notebook, so you have to prepare your index first. Open your English classwork notebook and prepare index by writing serial number, date and the topic. And the topics for today's lecture are word meanings and question answers. Let's begin. Before we begin with the reading, just make sure that you have your English students book, your English classwork notebook and your complete stationery with you. Listen to the lecture very attentively, very carefully, and note down all the things said by your teacher. If you find anything difficult or you find anything that you don't understand or you need to ask any question from your teacher, you can send a WhatsApp voice note with the with your name, grade and the subject and the lecture about which you are going to ask anything. Okay, so let's start. Do you know what is a traditional tale? Let me tell you. First, open your English students book page number 16 where you can find the unit number 3. Open page number 16 and mark date and day on the top of this page. Okay, tale means a story and traditional means ऐसी story जो सब लोग एक दूसरे को सुनाते चले आ रहे हों. Suppose आपने बहुत सारी stories अपनी मदर से, अपने फादर से या अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी होंगी और उन्होंने आपको ये बताया होगा कि ये स्टोरीज़ उन्होंने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से सुनी हैं. यानी कि सब लोग अपने से छोटों को वो स्टोरीज़ सुनाते चले आ रहे होते हैं, जिसकी वजह से सब लोगों को वो स्टोरीज़ याद हुई भी होती हैं. ऐसी स्टोरीज़ को हम क्या कहते हैं? ट्रेडिशनल टेल्स. A traditional tale is a story that has been told and retold for many years and consequently becomes a story that almost everyone knows. Traditional tales are also referred to as fairy stories or fairy tales. For example, we all know about Cinderella and her stories. We all know about Snow White and her stories. We all know the Tarzan stories, the Jungle Boy stories. These all are the examples of traditional tales. In this traditional tale, which is why the world is good or bad, this lesson is about a blind man who got his daughter married to a person and his son-in-law was a proud man who disgraced his father-in-law. क्योंकि जो फादर इन लॉ है वो ब्लाइंड है, सो जो उसका सन इन लॉ है वो ये समझता है कि जो ब्लाइंड मैन है वो बिल्कुल बेकार है और वो उसको डिसग्रेस करता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता कि एक ब्लाइंड मैन का दुनिया में कोई काम नहीं और ये बिल्कुल एक बेकार इंसान है. हालांकि ऐसा नहीं होता. द ब्लाइंड मैन ऑफर्ड हिज सन फॉर हंटिंग. वन डे they went hunting and the blind man was observing everything with his ears. Dear grade 4 students, do you know जो लोग किसी एक सेंस से डिसेबल होते हैं, सपोज जैसे ये ब्लाइंड मैन है. डू यू नो व्हाट इज़ अ ब्लाइंड मैन? ब्लाइंड मैन इज़ अ पर्सन हु कांट सी. जो बंदा देख नहीं सकता, उसकी अगर जो साइट सेंस है वो काम नहीं करती, उसे हम कहते हैं ब्लाइंड मैन. कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी कोई एक सेंस से वो डिसेबल होता है तो उसकी जो बाकी दूसरी सारी सेंसेस होती हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और वो सेंसेस इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि जो सेंस उसके पास नहीं होती वो उसकी ज़रूरत को भी ओवरकम कर रही होती हैं. इस स्टोरी में आप ये देखेंगे कि एक ऐसा बंदा जो देख नहीं सकता, जो ब्लाइंड मैन है,
वो अपने ईयर्स को यूज़ करते हुए उस चीज़ों को भांप लेता है, उसे सिचुएशन का पता चल जाता है, अपने उसके जो हियरिंग सेंस है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। वैसे वो ब्लाइंड है लेकिन उसे ये पता चल जाता है कि कौन उसकी तरफ आ रहा है और क्या होने वाला है। सो एट द एंड ऑफ दिस लेसन द सन इन लॉ विल लर्न अ लेसन दैट no one is useless in this world. Everyone and every person and everything has its own importance. So let's begin with the reading. I hope you all have written the date and day on the top of the page number 16. So open your English classwork notebook and today's classwork page. Write date and day on the top of your classwork page also. Then you will draw this लाइन इन द मिडल ऑफ क्लासवर्क पेज, क्योंकि आपने अपनी क्लासवर्क पेज पे वर्ड्स मीनिंग्स लिखने हैं. फर्स्ट सेक्शन इज़ फॉर वर्ड्स एंड द अदर इज़ फॉर मीनिंग्स. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 16 आई एम गोइंग टू बिगिन द रीडिंग ऑफ दिस स्टोरी. यू विल रीड इट विद मी. मैं जहाँ से रीड कर रही हूँ आप वहाँ उन वर्ड्स पे अपनी फिंगर को मूव करेंगे और मेरे साथ साथ पूरा लेसन रीड करेंगे. सो लेट्स बिगिन. Why the world is good and bad. A long time ago, a blind man lived with his daughter. When she married, he happily gave the couple his house to live in while he went to sleep in a small hut. Blind man की जो daughter थी, जब उसकी शादी हो गई तो blind man ने क्या किया कि अपनी daughter और अपने son in law को अपना घर रहने के लिए दे दिया और ख़ुद साथ में एक hut में उसने रहना स्टार्ट कर दिया. The daughter said her father was a good and wise man. जो daughter थी वो क्या कहती थी कि मेरे father एक wise man है और एक good man है. But his husband scoffed. लेकिन जो उसका husband था, जो blind man का son in law था, वो उसका मजाक उड़ाता था. He made fun of him कि जो एक blind man है वो कैसे अच्छा हो सकता है. What did he say? What good is a man who can't see. कि कोई ऐसा बंदा जो देख ही नहीं सकता, उसमें क्या अच्छा हो सकता है. डियर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, इज़ दिस गुड. ये सोचना अच्छी बात है कि जो बंदा ब्लाइंड है वो कैसे अच्छा हो सकता है. बुरी बात है. वेरी गुड. ही माइट एज वेल बी डेड. ओ माई गॉड. वो सन इन लॉ क्या कहता था कि जो ब्लाइंड मैन है वो अच्छा नहीं हो सकता, वो तो ऐसे ही है जैसे कोई डेड हो. हालांकि ऐसा तो नहीं होता. जो अलाइव है और जो एक पर्सन दुनिया में है, इट मीन्स कि उसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी और उसकी कोई ऐसी उसमें सेंस होगी, उसमें कोई ऐसी खूबी होगी जो दूसरे लोगों में नहीं होगी. सो लेट्स कंटिन्यू द रीडिंग. वन डे द ब्लाइंड मैन आस्क्ड हिज सन इन लॉ, मे आई कम हंटिंग विद यू. ब्लाइंड मैन ने अपने सन इन लॉ से क्या कहा कि मैं आपके साथ हंटिंग के लिए जा सकता हूँ. बट द यंग मैन सेड नो, ब्लाइंड मैन कांट हंट. सन इन लॉ ने क्या कहा कि नहीं, ब्लाइंड मैन हंट नहीं कर सकते. हिज वाइफ बेग्ड हिम टू बी काइंड टू हर फादर. अब जो सन इन लॉ है उसकी जो वाइफ है उसने कहा कि नहीं, आपको मेरे फादर के साथ काइंडली पेश आना चाहिए और इनको अपने साथ लेके जाएं. बेग्ड मीन्स आस्क फॉर समथिंग. आर यू राइटिंग दीज वर्ड्स मीनिंग्स? ओके. Make sure to write down very neatly and beautifully. Okay. His wife begged him to be kind to her father until the young man finally gave in and said yes. Okay, here gave in means कि वो उसकी बात मान गया. Gave in means कि उसने अपनी बात छोड़ दी और अपनी वाइफ की बात मान गया और क्या कहा? Yes. The two men walked through the bush and the young man set 2 traps. Do you know what does trap mean? ट्रैप वो नेट होता है जो हंटिंग के लिए यूज़ होता है. एक नेट आपने देखा होगा, जो हंटर्स होते हैं वो एक नेट फैला देते हैं जिसमें जो सपोज़ अगर उन्होंने किसी लायन को हंट करना हो या उन्होंने किसी भी एनिमल को हंट करना हो तो वो उसके रास्ते में एक नेट बिछा देते हैं और वो जो एनिमल होता है वो उसमें आके फंस जाता है. इस तरह के नेट को क्या कहते हैं? ट्रैप. ओके. उन्होंने क्या किया? 2 ट्रैप्स वहाँ पे डाल दिए. वन फॉर हिमसेल्फ एंड वन फॉर द ब्लाइंड मैन. द फॉलोइंग डे दे रिटर्न्ड टू इंस्पेक्ट देयर ट्रैप्स. नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया? वो गए और उन्होंने देखा कि उनके ट्रैप्स में कोई एनिमल आया है या नहीं आया, ये देखने के लिए वो वहाँ गए.
हाफ वे देयर, जब वो आधा रास्ता गुजर चुके थे, द ब्लाइंड मैन हिज्ड, ब्लाइंड मैन ने कुछ फील किया, कुछ सुन लिया। हिज्ड मीन्स विसल, उसने कुछ फील किया कि कोई आवाज़ आ रही है हल्की सी। वॉच आउट, वॉच आउट मीन्स ध्यान से देखो। देयर इज़ ए लाइन नियर बाय, ब्लाइंड मैन ने क्या कहा कि यहाँ कोई लायन है। अब सन इन लॉ को पता नहीं चला, लेकिन जो ब्लाइंड मैन था, जो देख ही नहीं सकता था, उसे पता चल गया कि यहाँ कोई लायन है। कैसे पता चला? क्योंकि उसकी जो हियरिंग सेंस है वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उसने अपने ईयर से ही फील कर लिया कि कहीं आसपास कोई लायन है। ओके, कम टू द पेज नंबर 17। हाउ डू यू नो, विस्पर्ड द सन इन लॉ, सन इन लॉ ने आहिस्ता से पूछा, हाउ डू यू नो, आपको ये कैसे पता चला यहाँ एक लायन है? बिकॉज आई कैन सी विद माई ईयर्स। ग्रेड 4, कोई अपने ईयर्स से देख सकता है? देख नहीं सकता, बट इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो बातें आम लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं, वो ब्लाइंड पीपल अपने ईयर से उनको हियरिंग सेंस से उन बातों को फील कर सकते हैं। अब वो क्या कह रहे हैं? बिकॉज आई कैन सी विद माई ईयर्स। इसका मतलब ये है कि मेरे ईयर्स, मेरी हियरिंग सेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं चीज़ों को फील कर सकता हूँ। The two men stood motionless as a lion crossed the track ahead of them. उनके सामने कोई रास्ता बना हुआ था, उसके ऊपर से वो जो लायन था वो खामोशी से गुजर गया और ये दोनों बिल्कुल चुपचाप साइड पे होके खड़े रहे और लायन को पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई है। तो वो जो उनके सामने जो कोई रास्ता बना हुआ था, कोई पाथ था, उसके ऊपर से जो लायन था वो गुजर गया। ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 16 पे पिक्चर में देखें, यहाँ पे 2 पर्सनस हैं। जो ब्लू ड्रेस में है वो सन इन लॉ है और जो वाइट ड्रेस में है वो ब्लाइंड मैन है और उनके सामने आप देखें एक लायन जा रहा है। इस तरह से लायन उनके सामने से गुजर गया और लायन को पता नहीं चला कि यहाँ पे कोई खड़ा है। अगर ब्लाइंड मैन फील ना करते कि लायन आ रहा है तो वो दोनों चलते जाते और चलते जाते वो लायन के सामने आ जाते और लायन क्या करता, उनको खा जाता। अब ब्लाइंड मैन की उस सेंस की वजह से उनकी जान बच गई और लायन को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे कोई 2 लोग हैं, क्योंकि वो पहले ही बच गए। देन दे कंटिन्यू टू द ट्रैप्स, फिर वो अपने ट्रैप्स की तरफ को चल पड़े। दे हैड कॉट 2 बर्ड्स, उन्होंने 2 बर्ड्स पकड़ लिए थे, यानी कि उनके ट्रैप्स में 2 बर्ड्स आ गए थे। अ स्मॉल ग्रे वन इन द यंग मैन्स ट्रैप एंड एन एनॉर्मस मैनी कलर्ड वन इन द ब्लाइंड मैन्स ट्रैप। जो यंग मैन का ट्रैप था, यानी कि जो सन इन लॉ का ट्रैप था, उसमें एक ग्रे कलर का छोटा सा बर्ड आया और जो ब्लाइंड मैन का ट्रैप था उसमें बहुत सारा कलरफुल एक बर्ड उसके ट्रैप में आके फंस गया। वन इन द ब्लाइंड मैन्स ट्रैप। ओके, विदाउट अ वर्ड द यंग मैन गेव द स्मॉल ग्रे बर्ड टू द ब्लाइंड मैन। सन इन लॉ ने कुछ कहा नहीं और जो अपना ग्रे बर्ड था वो भी ब्लाइंड मैन को दे दिया। As they were walking back to the village, जब वो वापस आ रहे थे, the young man asked his father-in-law, why is there so much wickedness in the world? यंग मैन ने अपने फादर से क्या कहा है कि दुनिया में बहुत ज़्यादा विकेडनेस क्यों है? विकेडनेस मीन्स नॉटीनेस और यू कैन से बैड हैबिट्स। जो लोगों की चालाकियाँ होती हैं, लोगों में जो बुराइयाँ होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विकेडनेस। सन इन लॉ अपने फादर इन लॉ से पूछ रहे हैं कि वाई इज़ देयर सो मच विकेडनेस इन दिस वर्ल्ड? द ब्लाइंड मैन स्माइल्ड सैडली एंड सेड, बिकॉज पीपल लाइक यू टेक व्हाट डज नॉट बिलोंग टू देम। क्योंकि जो आपके जैसे लोग होते हैं वो ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो उनकी नहीं होती। एक्चुअली हुआ क्या था, जब इन्होंने जब दोनों आदमियों ने आके अपने ट्रैप्स देखे और जो सन इन लॉ है उसने देखा कि उसके ट्रैप में तो एक छोटा सा बर्ड आया है और जो ब्लाइंड मैन है उसके ट्रैप में बहुत बड़ा सा कलरफुल बर्ड आया है। तो यंग मैन ने अपना बर्ड और उस ओल्ड मैन का बर्ड एक्सचेंज कर दिया, उनको अपना ग्रे वाला दे दिया और उनका कलरफुल खुद ले लिया, ये सोचते हुए कि ये तो ब्लाइंड हैं, इन्हें तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या होगा। लेकिन अब ब्लाइंड मैन क्या कर रहे हैं कि दुनिया में इसलिए इतनी विकेडनेस है क्योंकि आपके जैसे लोग ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो उनकी नहीं होती। मीन्स वो ऑनेस्ट नहीं होते। डू यू नो व्हाट डज ऑनेस्टी मीन? ऑनेस्ट लोग वो होते हैं ना जो झूठ नहीं बोलते और जो दूसरों की बिलोंगिंग्स को नहीं, उनकी परमिशन के बगैर नहीं ले लेते, ऐसे लोग ऑनेस्ट होते हैं।
लेकिन जो ऑनेस्ट नहीं होते वो दूसरों की बिलोंगिंग्स को खुद ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ सन इन लॉ ने क्या किया, अपना बर्ड उनके बर्ड के साथ चोरी छुपे एक्सचेंज कर लिया, लेकिन ब्लाइंड मैन को पता चल गया क्योंकि उनकी बाकी सेंसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ओके, ब्लाइंड मैन सैडली सेड बिकॉज पीपल लाइक यू टेक व्हाट डज नॉट बिलोंग टू देम, क्योंकि लोग वो चीज़ें ले लेते हैं जो उनकी नहीं होती। अब सन इन लॉ को पता चल गया कि ब्लाइंड मैन को तो पता चल गया है कि मैंने इनके साथ अपना बर्ड एक्सचेंज कर लिया है। द यंग मैन सेड नथिंग, यंग मैन ने बोला कुछ भी नहीं क्योंकि वो अशेम्ड हो गया, वो शर्मिंदा हो गया। बट ही वॉज अशेम्ड व्हेन दे रीच्ड होम, जब वो दोनों घर आ गए। ही टोल्ड द अदर विलेजर्स, उसने बाकी जो विलेजर्स थे, वो यंग मैन ने बाकी विलेजर्स को क्या बताया, ही इज़ अ गुड हंटर, उसने बताया कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो एक गुड हंटर हैं, एंड अ वाइज मैन इवन दो ही इज़ ब्लाइंड, कि जो मेरे फादर इन लॉ हैं वो ब्लाइंड हैं लेकिन वो बहुत अच्छे हंटर हैं और बहुत वाइज मैन है। वाइज मैन मीन्स इंटेलिजेंट, जो बहुत अक्लमंद होता है। देन ही इन्वाइटेड द ब्लाइंड मैन टू हैव सपर विद हिम एंड हिज वाइफ। डियर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स, सपर इज़ द मील विच इज़ ईटन इन द मिडल ऑफ लंच एंड डिनर। आप लंच के बाद और डिनर से पहले जो एक मील लेते हैं, अमूमन वो हमारे घरों में कॉमनली टी टाइम होता है, उसे कहते हैं सपर। जो सन इन लॉ है उसने अपने फादर इन लॉ को अपने घर सपर पे इनवाइट किया। अब इस सारी बातों से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जो सन इन लॉ है उन्हें अपनी मिस्टेक का एहसास हो गया है। उन्हें पता चल गया है कि ब्लाइंड मैन बुरा नहीं है, वो भी गुड हैं और उनकी एक अपनी इम्पोर्टेंस है, उनकी अपनी सेंसेस हैं और वो बहुत वाइज मैन है। और सन इन लॉ ने विलेजर्स को भी बताना शुरू कर दिया है कि वो एक अच्छे हंटर हैं, वाइज मैन हैं, हालांकि वो ब्लाइंड हैं। और साथ में उन्होंने उन्हें अपने घर पे सपर पे इनवाइट भी किया है। आफ्टर सपर ही पुट हिज हैंड ऑन द ब्लाइंड मैन्स आर्म एंड सेड, सपर के बाद उन्होंने ब्लाइंड मैन के आर्म पे अपना हाथ रखा और क्या कहा, टेल मी पापा वाई इज़ देयर सो मच गुडनेस इन द वर्ल्ड, कि फादर इन लॉ मुझे ये बताएं कि दुनिया में अच्छाई क्यों है। पहले उन्होंने क्यों पूछा था कि दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, और उनके फादर इन लॉ ने क्या कहा था, क्योंकि आपके जैसे लोग ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जो उनकी नहीं होती। अब वो पूछ रहे हैं कि फादर इन लॉ मुझे बताएं कि दुनिया में इतनी अच्छाई क्यों है। द ब्लाइंड मैन स्माइल्ड हैप्पीली एंड ही आंसर्ड बिकॉज पीपल लाइक यू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक। ब्लाइंड मैन उसे क्या कह रहे हैं कि दुनिया में अच्छाई इसलिए है क्योंकि आपके जैसे जो लोग होते हैं वो अपने मिस्टेक्स का उन्हें एहसास हो जाता है और वो अपनी मिस्टेक्स से लर्न करते हैं। मतलब ये कि वो आइंदा से अपनी मिस्टेक्स को छोड़ देते हैं और अच्छे लोग बन जाते हैं। डिड यू एंजॉय द स्टोरी? I also really enjoyed it. Okay, next work is questions and their answers. You can find these questions on page number 17. You will write down the questions and their answers in your notebook, so please keep on writing. Question number 1 is, okay, read this question and write it down on your notebook. Question is, what did the blind man do when his daughter got married? जब ब्लाइंड मैन की डॉटर की उसने शादी कर दी, फिर उसने क्या किया, यस, उसने अपना घर अपनी डॉटर और सन इन लॉ को दे दिया और खुद हट में रहने लग गया। ही गेव द कपल हिज हाउस एंड मूव्ड इनटू अ हट। राइट डाउन दिस क्वेश्चन एंड आंसर इन योर क्लास वर्क नोटबुक। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट डिड द यंग मैन थिंक ऑफ द ब्लाइंड मैन? अब इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी एंड द सेकेंड इज़ एट द एंड ऑफ द स्टोरी। जब स्टोरी बिगिन होती है तो जो सन इन लॉ है वो अपने फादर इन लॉ के बारे में क्या सोचते हैं? एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी ही थॉट ही वॉज ऑफ नो यूज़ दैट ही माइट एज वेल एज बी डेड। उसे क्या लगता है कि जो उसके फादर इन लॉ हैं वो क्योंकि ब्लाइंड हैं इसलिए वो किसी काम के नहीं हैं, वो बिल्कुल बेकार हैं, जैसे कोई मरा हुआ इंसान हो। Write down this answer in your notebook. The B part of this question is at the end of the story. जब स्टोरी एंड होती है तो जो सन इन लॉ है वो अपने फादर इन लॉ के बारे में क्या सोच रहे हैं? He respected the blind man. उसके दिल में अपने फादर इन लॉ के लिए रिस्पेक्ट आ जाती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो एक वाइज मैन है। क्वेश्चन नंबर 3 इज़, The blind man was a good hunter because, okay, you don't need to write this question on your notebook, but ये आप अपनी बुक पे ही मार्क करेंगे। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं and the first option is he went hunting with a strong man who could see,
और he used his ears instead of his eyes, और he could smell the lion. ब्लाइंड मैन एक अच्छा हंटर कैसे है? क्या उसने लायन को स्मेल किया, या उसने अपने ईयर्स को यूज़ किया, या वो इसलिए अच्छा गुड हंटर है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग मैन के साथ गया? ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन, ही यूज्ड हिज ईयर्स इंस्टेड ऑफ हिज आइज. सो प्लीज़ मार्क टिक ऑन ऑप्शन बी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ वाई वॉज द यंग मैन अशेम्ड. यंग मैन एंड पे शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, अशेम्ड था. क्यों? बिकॉज ही रियलाइज दैट हिज फर्स्ट ओपिनियन अबाउट हिज फादर इन लॉ वॉज रॉन्ग. वो अपने फादर इन लॉ के बारे में जो सोचता था, वो उसकी सोच, उसके थॉट रॉन्ग था, इसलिए एंड पे वो अशेम्ड फील कर रहा था. आर यू राइटिंग दीज क्वेश्चंस एंड आंसर्स? ओके. क्वेश्चन नंबर 5 इज़ हाउ डू वी नो दैट द यंग मैन लर्न फ्रॉम हिज मिस्टेक. हमें कैसे पता चला कि यंग मैन ने अपनी मिस्टेक से लर्न किया है? क्योंकि एंड पे वो लोगों को भी अपने फादर इन लॉ की तारीफ़ें कर रहा था, उनकी अच्छाइयाँ बता रहा था, फिर उसने उन्हें रिस्पेक्ट भी देना स्टार्ट कर दी. इससे हमें पता चला कि जो सन इन लॉ हैं वो अपनी मिस्टेक से उन्होंने लर्न कर लिया है. अब आइंदा वो इस तरह की रॉन्ग जो थॉट्स हैं वो नहीं रखेंगे. ही स्पोक वेल ऑफ ब्लाइंड मैन टू द अदर विलेजर्स. Okay, question number 6 is think of the words or phrases that can take place of these words in the story. स्टोरी में ये कुछ वर्ड्स हैं. पैराग्राफ 1 में है स्कफ्ड, पैराग्राफ 2 में है, पैराग्राफ 3 में है इंस्पेक्ट, और अगेन पैराग्राफ 3 में है मोशनलेस. हमने इन वर्ड्स के रिप्लेसमेंट वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं कि इन वर्ड्स के रिप्लेसमेंट में कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं. यू कैन से हमने इनके मीनिंग्स लिखने हैं और इनके सिनोनिम लिखने हैं. सो for word inspect we can write looking carefully at something. motionless means completely still, जो हिल ना रहा हो, बिल्कुल स्टिल खड़ा हुआ हो. scuffed means make fun of, किसी चीज़ का मजाक उड़ाना. have you written? okay, now it's time for your homework. please open your diary and write down day, subject is English, and then note down your today's homework, which is first of all you need to listen this whole lecture again and read out the whole story again with correct pronunciation, and then learn the meanings of difficult words that I have given you in this lecture and you have written in your notebook. सेकेंडली आपने क्या करना है, आपने हमने क्वेश्चंस 1 till 6 क्लास वर्क में कर लिए हैं. क्वेश्चन नंबर 7 and 8 आर रिमेनिंग येट. You have to write down these questions and their answers in your English homework notebook. Question 7 and question 8 के आंसर आपने अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखने हैं. Question 7 is retell the story to the partner using the words first, next, then, in the end. Okay, आपने इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए ये स्टोरी एक्चुअली अपने सिबलिंग को सुनानी है, अपने बहन भाई को आपने ये स्टोरी सुनानी है. ये आपका राइटिंग वर्क नहीं है, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है. आपने यही स्टोरी इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए सुनानी है. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ व्हाट लेसन डज दिस स्टोरी टीच अस. आपने इस स्टोरी से जो भी लेसन लर्न किया है, आप वो लेसन अपनी नोटबुक में लिखेंगे इन 1 to 2 लाइन्स. ओके, लेट मी टेल यू व्हाट आई हैव लर्नड. मैंने ये लर्न किया है कि दुनिया में कुछ भी मीनिंगलेस नहीं होता. एवरीथिंग और एवरी वन एंड एवरी पर्सन हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस. आपने इस लेसन से क्या लर्न किया है, आप वो अपनी होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे. सो दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर. गुड लक डियर ग्रेड 4 स्टूडेंट्स. अल्लाह हाफिज़.